Hello, class 11 students. How are you guys doing? I welcome you to the platform of Infinity Vision. This is episode 3 of additional problem solving, and today the topic we have picked is trigonometry 1, part A, because we'll be doing a lot of problem solving on trigonometry, so that is why just a part A. As you know, the idea of additional problem solving, it helps you revise the content, it helps you reinforce the concepts, and it helps you develop the problem solving skills which is required for JEE mains and JEE advanced. So without wasting much time, let's get into the problem solving part. So the first question, that is going to be the 35th question, because we have already covered 34 questions in this series, so we'll be continuing the number with the same chronology, in the same sequence. Now, which of the following reduces to unity where A belongs to 0 to 90 degrees? So it's something like A is an acute angle, and then you have to see whether this expression reduces to unity or not. A very easy question, a class 10 student can easily handle this. So agar main dekho isko, so if I try to solve it, what you can see that sec square minus A, sec square minus A can easily be written as you know, 1 plus tan square A is sec square A. So what I can do is, instead of writing sec square A, I can write 1 plus tan square A minus 1 into cot square A. It's very easy, right? So you can see 1 plus this 1 gets cancelled with this one, so you are just left with tan square A into cot square A. And you know, cot and tan, they are reciprocal to each other, their square will also be reciprocal to each other, so their product is going to be 1. So yes, it reduces to unity. So let's go to the second part. Very easy problem. Cos A into cosec A into under root sec square A minus 1. Similarly, I'll just begin. Cos A can be written as cos A. Cosec A can be written as 1 upon sin A, because you know cosec is reciprocal of sin A. And sec square A minus 1, as you know, sec square A is 1 plus tan square A. So what you can do, you can simply write 1 plus tan square A minus 1. So what you got? Cos A over sin A into tan A mod. Now you know, since A is acute angle, so tan A is definitely going to be positive, so that can easily be handled. So cot A into tan A, you know they are reciprocal, so they will become 1. Let's go to the third part. Third part says cosec square A minus 1. Again, I can apply the Pythagorean relation 1 plus cot square A. So cosec square A can be written as 1 plus cot square A minus 1 into tan square A. As you can say, 1 gets cancelled with 1, so this becomes cot square A into tan square A. Again, that becomes 1. So all the three expressions turn out to be. Let's go into the fourth. 1 minus cos square A, everybody know that is going to be sin square A. And 1 plus cot square A, everybody know that is going to be cosec square A. Sin and cosec, they are reciprocal, so the square will also be reciprocal. That's going to be 1. So till now all the four expressions converted into unity. Similarly, come to the fifth one. Sin A can be written as sin A. Sec A can be written as 1 upon cos A, and root cosec square A minus 1. So you know cosec square A is basically 1 plus cot square A. So this is going to be root cot square A. So you can say this is going to be tan A. Sin A upon cos A is tan A, and this can be written as mod cot A. Now you know cot square A का square root mod cot A होगा, but A already acute angle है, the mod of course cot A बन जाएगा. So this is going to be tan A into cot A, which is going to be 1. Easy problems. Problem 6, 1 minus sin square A into 1 plus tan square A. Similarly, this can be written as cos square A, Pythagorean relation, and 1 plus tan square A is basically sec square A. And you know cos and sec, they are reciprocal to each other, so their square would also be reciprocal to each other, so this is going to be 1. So all the 6 expressions converted into unity. Let's go to the 7th. Sec square A can easily be written as 1 upon cos square A, and this can easily be written, or you don't need to convert it, you can leave as it is as sec square A, and this can be written as minus sin square A upon sec square A can be written as cos square A,
So this can be sec square a minus tan square a. You know sec square is basically 1 plus tan square a, so this is going to be 1. So all the 7 expression easily converted into unity. Now let's go to the 8th expression, 1 upon 1 plus sine square a. 1 upon 1 plus sine square a plus 1 upon 1 plus cosec square a. Now cosec square a can easily be written as 1 upon sine square a. देखिए क्या हो गया, ये एज इट इज छूट जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए. ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए. अगेन यू कैन टेक द एलसीएम एज 1 प्लस साइन स्क्वायर ए. न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए. You see numerator both are same, so that is going to be 1. Let's go to the 9th problem, 9th part, tan square a into sin square a upon tan square a minus sin square a. So you can see this is tan square a into sin square a upon tan square a minus sin square a. So what I can do, I can replace I can convert tan square as sin a upon cos a, so it can be written as sin square a upon cos square a into sin square a. न्यूमरेटर में ये आ जाएगा, देखो डिनोमिनेटर में क्या होगा, sin square a upon cos square a minus sin square a. राइट, आप देख सकते हो दोनों का डेनोमिनेटर सेम कर दोगे तो न्यूमरेटर का जो साइन स्क्वायर ए, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा साइन टू द पावर 4a अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए. देखो क्या होगा, this and this gets cancelled, you are just left with, let's take this, तो ये मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, so you will be left with sin to the power 4a upon sin स्क्वायर कॉमन ले लो 1 माइनस cos स्क्वायर a. देखिए क्या हो गया, sin to the power 4a upon sin स्क्वायर a into sin स्क्वायर a, which is going to reduce as. So all the 9 parts has been easily converted into unity. Now let's look at the 10th part. Cot square a into cos square a upon cot square a. Again we'll approach the same way. We'll just write it as cos square a upon sin square a into cos square a. ये numerator है, divided by cos square a upon sin square a. Same approach what we did in the last problem. So this is going to be cos to the power 4a upon sin square a divided by cos square a minus sin square a cos square a divided by sin square a. Now you can see this sin square and this sin square will get cancelled and you will just left with cos to the power 4a divided by cos square a common 1 minus sin square a, which is going to be cos to the power 4a divided by cos square a into cos square a. So both are same, so this is going to be 1. So all the 10 parts were easily converted into, so it gave you a strong understanding of the Pythagorean identity which we did in class 10th also, right? So it was an easy problem. Let's go to the 36th problem. Let's first read the problem. It says a man walks outside a square lawn of 40 by 40 square meter. So there is a square lawn of 40 by 40 square meter. He walks in such a way that remains at a distance of 10 meter from the lawn. If he takes 20 rounds every morning, find his distance coverage. So I'll just first draw a square lawn. So let's say this is your square lawn. So let's say this is the place where our person walks. ये हो गया स्क्वायर लॉन और बंदा कितने दूर है, 10 मीटर की दूरी से वॉक करता है. तो लेट्स से मैं बंदे का जो पाथ है वो थोड़ा 10 मीटर की दूरी पे बना दूं. तो अगर मैं देखूं, एक तो ये हो जाएगा पाथ 10 मीटर की दूरी पे, एक पाथ ये हो जाएगा 10 मीटर की
दूरी पे, आई हैव टू मेंटेन दैट ही इज 10 मीटर अवे। एक ये पाथ हो जाएगा, so his red color is his path, just take care of that. And then, so let's say this is his path which is like 10 मीटर, लेकिन आप देख रहे हो कि ये कंटिन्यूस पाथ नहीं है, तो हमें कंटिन्यूटी लानी होगी। तो कंटिन्यूटी लाने के लिए जस्ट एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे देखूं और इसको यहाँ से ऐसे देखूं, इसको यहाँ से ऐसे देखूं और इसको यहाँ से ऐसे देखूं, इसको यहाँ से ऐसे देखूं, जस्ट अ रफ डायग्राम, डोंट वरी अबाउट कि एज उधर से उधर निकल रहा है। तो हमें ये पता है कि these four red paths which you can see are definitely 10 meter away from the square lawn. Now if I have to look into this region, let's say if I have to look here in this region, or if I look here in this region and this region, if I have to maintain that he just remains 10 meter away, so I must ensure कि वो लॉन से 10 मीटर अवे कैसे रहेगा, only through a circular path, right? Only through a, let me take the another color, let me take the pink to show the circular path. तो मुझे ये पता चल गया कि यहां से यहां उसको यहां से यहां he has to ensure something like a circular, he has to ensure something like a circular, he has to ensure something like a circular. तो आप देख सकते हो ये 4 सर्कुलर पाथ्स हो गए हैं। बेसिकली अगर आप गौर से देखोगे तो ये अगर मैं देखूं तो ये एक क्वार्टर है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, जस्ट ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करना ज्यादा जरूरी है सॉल्व करने से। अब देखो ये क्या हो गया। सो बेसिकली मैंने रेड और पिंक से मैंने इंश्योर कर दिया कि दिस चैप ऑलवेज रिमेन 10 मीटर फ्रॉम द स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर की देखिए क्या है, स्क्वायर का डायमेंशन आपको पता है, दैट इज 40, और ये 10 की दूरी पे, यहाँ पे ये 10 मीटर की दूरी पे आ गया है, ये 10 मीटर की दूरी पे आ गया है, ये 10 मीटर की दूरी पे आ गया है, और आपको ये पता है कि ये रेडियस 10 का है। आप अगर देख रहे हो 4 क्वार्टर सर्कल है, ये चारों क्वार्टर सर्कल को एक साथ बना दोगे तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो अगर ये आप पिंक को देखोगे तो पिंक एक कंप्लीट सर्कल बना दिया है, और ये जो 4 ये बेसिकली आपके पेरीमीटर हो गए। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं सिंपली कैलकुलेट करूं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इन वन कंप्लीट राउंड, इन वन कंप्लीट राउंड, तो आपको क्या आंसर मिलेगा। आपको पता है ये 4 रेड पाथ हैं, तो 4 इंटू 10 मीटर, प्लस आपको पता है ये जो पिंक सर्कुलर पाथ हैं, ये बेसिकली एक सर्कल बना रहे हैं, पिंक कलर का एक सर्कल बना रहे हैं जिसका रेडियस 10 है, तो पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई इंटू 10 मीटर। तो आप कह सकते हो 4 प्लस 2 पाई, और अदर यू कैन से, आप फर्दर सिंप्लीफाई करके आप कह सकते हो 20 इंटू 2 प्लस पाई मीटर पर राउंड। आप इतना ट्रैवल कर रहे हो, आप क्या कितना राउंड लेते हो, एक राउंड में आप इतना करते हो, तो इफ ही टेक्स 20 राउंड, तो 1 मॉर्निंग वॉक में वो कितने राउंड्स लेता है 20 राउंड्स। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम एवरी मॉर्निंग क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू पाई प्लस 2 मीटर, that makes it 400 into pi plus 2 meter. So pi is like almost 3.14, 3.14 plus 2 is 5.14, 5.4. So basically he travels around 2 kilometers every morning, he jogs every day, right? This is how he do.
So it was an interesting problem. You just needed to visualize. Let's go to the 37th problem. A man walks outside a triangular lawn whose east side measure 30 meter. मतलब अब जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस बार लॉन का शेप ट्रायंगुलर हो गया है. He walks in such a way that he always remains at a distance of 10 meter from the lawns. Find the distance he covers in one round. तो सेम स्टोरी है बट इस बार शेप चेंज हो गया है. So we have to understand the geometry here. So if I say this is like a 30-meter equilateral lawn, right? अगर मैं इसको equilateral ले लूँ और अगर मैं अब फिर से मुझे इंश्योर करना है, लेट्स से आई विल टेक अगेन द रेड पाथ, मुझे फिर से इंश्योर करना है कि वो 10 मीटर की दूरी पर है, तो मैं इतना तो देख सकता हूँ कि ये मान लो 10 मीटर है, राइट? फिर मैं यहाँ से मान सकता हूँ कि ये 10 मीटर है, ठीक है? और फिर मैं यहाँ पे मान लो कि ये 10 मीटर है, राइट? तो अब क्या हो गया है कि मुझे ये तो रेड पाथ क्लियर हो गया है, 10-10 मीटर है. आपको पता चल चुका होगा ये गैप कहाँ पे है. सो लेट्स चेक द गैप. अगर आप गौर से देखेंगे तो एक है ना, आप गौर से देखेंगे तो गैप आपके यहाँ पे है. और अगर मैं ऑरेंज से डिनोट करूं तो ये पाथ फॉलो करेगा एक सर्कुलर पाथ, ये एक सर्कुलर पाथ और ये सर्कुलर पाथ. सिंस यू नो कि इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट? अगर मैं इसको करूं तो ये आपका एक पाथ हो गया, ये एक सेक्टर हो गया, ये एक सेक्टर हो गया और ये एक सेक्टर हो गया, राइट? तो ये तो मुझे क्लैरिटी है कि दिस इज गोइंग टू बी 30 मीटर, दिस इज गोइंग टू बी 30 मीटर, दिस इज गोइंग टू बी 30 मीटर. इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है. मुझे अब देखना होगा कि ये एंगल क्या है, मुझे ये एंगल पता करना होगा कि क्या है. आपको डेफिनेटली पता चल चुका होगा ये एंगल क्या है. दैट इज गोइंग टू बी 120 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है. तो ये क्या हो जाएगा? 120 डिग्री. ये क्या हो जाएगा? 120 डिग्री. ये क्या हो जाएगा? 120 डिग्री. क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों सिमेट्रिकल रहेगा. तो अगेन ये जो तीन ऑरेंज सेक्टर्स हैं वो एक्चुअली में फिर से क्या बनाएंगे? 360 डिग्री, विच मीन्स वो एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे और उसका रेडियस क्या होगा? 10 मीटर. तो आप बता सकते हो कि वन राउंड में, मैं यहीं पे रेड से सेंटर पे बता देता हूँ, तो आप यहाँ पे बता सकते हो वन राउंड में कितना करेगा, या आप यहाँ लिख सकते हो डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड. बहुत आसान है, 3 इंटू 30 मीटर, दैट्स द पेरीमीटर ऑफ द रेड पाथ. और फिर से 10 मीटर, कितना 10 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन किया है तो रेडियस क्या है इसका? 10 मीटर है. सो 2 पाई आर, दैट इज द रेडियस, क्योंकि वही तीनों सेक्टर मिलकर कंप्लीट सर्कल बना रहा है. That is going to be 10 meter. So what you can take is 9 into 10 meter plus 2 pi into 10 meter. So you can take 9 plus 2 pi into 10 meters. So this is the distance he travels every day in his morning walk. Okay, so it was an easy problem. Now let's see what's the problem next. A man walks outside a triangular lawn whose side measures 60 meter, 80 meter and 100 meter. इस बार स्टोरी चेंज हो गई है. इस बार आपको स्केलिन ट्रायंगल आ गया है 60, 80 एंड 100. अगर आप देखेंगे तो ये पाइथागोरस भी, बट इट डजंट मैटर. मैटर ये है कि ये स्केलिन ट्रायंगल है. तो स्केलिन ट्रायंगल अगर आपको है तो जल्दी से स्केलिन ट्रायंगल बना देते हैं. It's going to be something like this. Okay, just don't worry about the diagram, है ना? So let's call this as 60, 80 and 100. इस तरीके का ये पाथ हो गया है. थोड़ा सा इसको कम कर दो ताकि हम, ये आपका ट्रायंगुलर लॉन है. अब क्या है, एक बंदा है जो वॉक कर रहा है 10 मीटर फ्रॉम द लॉन. तो अब इसको ब्लैक से दिखा देते हैं इस बार. सो 10 मीटर पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि 10 मीटर एक तो यहाँ पे ऐसे पैरेलली चलेगा, फिर एक 10 मीटर यहाँ पे चलेगा,
और एक 10 मीटर यहाँ पे चलेगा। फिर उसके बाद आपको पता है कि सर्कल का कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। इतना तो आपको ज्ञान हो चुका है। सर्कल के लिए आपको पता है क्या करना है, आप देख सकते हो। आप यहाँ से ऐसे करके ऐसे बना सकते हो। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हो, है ना। इतना थोड़ा रफ डायग्राम बन गया, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर मैं ऑरेंज से बनाना चाहूँ तो ये एक सर्कल ऐसा बनेगा, सेक्टर बनेगा ऐसा। ये सेक्टर है, डोंट वरी, बराबर है ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा बनेगा। इस बार आपको ध्यान देना होगा इस बात पे कि ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल बीटा होगा और ये एंगल गामा होगा। तीनों डिफरेंट एंगल होगा, लेकिन जो भी होगा क्या होगा, 360 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे कह दूं x, ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो अल्फा प्लस एक्स क्या हो गया, 180 डिग्री, राइट। इधर इसको कह दूं y, तो y प्लस बीटा क्या हो गया, 180 डिग्री। इसको मैं कह दूं z, तो z प्लस गामा क्या हो गया, 180 डिग्री। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 540 डिग्री। और एक्स वाई जेड क्या है, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री, क्या बन गया, 360 डिग्री। तो मुझे ये पता है कि ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है रेडियस, और ये तीनों का सेक्टर जो है सम 360 डिग्री बना रहा है, तो ये तीनों फिट इन कर जाएगा एक कंप्लीट सर्कल में। तो आई कैन टेल कि भैया डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड that would be perimeter plus 2 pi into 10 meter, that is the radius। perimeter क्या है देखिए, 60 plus 80 plus 100 मीटर प्लस 20 पाई। आप देख सकते हो इसको, आप क्या कह सकते हो, 240 मीटर, 240 मीटर प्लस 20 पाई। सो 20 कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 12 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ही ट्रेवल्स इन वन राउंड। ओके, लेट्स गो टू द मोर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम नाउ। अभी तक हमने थोड़ा सा बेसिक क्लास 10 टाइप के ही कॉन्सेप्ट्स को टच किया था। सो लेट्स गेट इनटू द मोर सीरियस प्रॉब्लम्स नाउ। देखिए क्या है इसमें, इसमें लिखा है साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री अपॉन कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री प्लस कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 7 डिग्री इज इक्वल टू tan x। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो 1 डिग्री को मैं 7 डिग्री और 3 डिग्री को मैं 5 डिग्री से जोड़ सकता हूँ। कॉस सेम वे डिनोमिनेटर में मैं cos 1 को cos 7 के साथ और cos 3 को cos 5 के साथ। इन सबको करने के लिए मुझे दो आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। वन इज साइन c प्लस साइन डी, द अदर इज cos c प्लस cos d। आई एम श्योर आपको दोनों याद होगा। साइन c प्लस साइन डी इज ट्वाइस ऑफ साइन c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू, और cos c plus cos d is twice of cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। अगर ये आइडेंटिटीज अभी तक आपको याद नहीं हुए हैं तो बहुत ही बुरा हाल है आपका, आपको भगवान ही बचा सकते हैं फिर। अगर लेफ्ट हैंड साइड से मैं काम करना शुरू करूं तो मैं साइन 1 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री को एक साथ कर दिया और साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री को एक साथ कर दिया, और cos 1 डिग्री प्लस cos 7 डिग्री को एक साथ कर दिया और cos 3 डिग्री प्लस cos 5 डिग्री को एक साथ कर दिया। साइन c प्लस साइन डी लगाया तो 2 इंटू साइन 7 प्लस 1 इज 8 बाई दैट इज 4 डिग्री इंटू cos 7 माइनस 1 इज 6 बाई 2 दैट इज 3 डिग्री, राइट। उसको मैं कर सकता हूँ 2 इंटू साइन अगेन 3 प्लस 5 बाई 2 दैट इज 4 डिग्री into cos 5 minus 3 2 by 2 that is
1 degree, right? Same way in the denominator, what I can get is 2 into cos 4 degree, same 1 plus 1 by 2, and then 7 minus, that is cos 3 degree. Then I can take 2 cos 4 degree, again 3 plus 5 is 8 by 2, and then 5 minus 3 by 2, that is cos 1 degree. I can take 2 sin 4 degree out, so अंदर क्या बचा, cos 3 degree plus cos 1 degree अपॉन नीचे क्या आया, 2 cos 4 degree अपॉन cos 3 degree plus cos 1 degree. आपको समझ में आ गया होगा अभी कौन किसको काटेगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, राइट. सो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan 4 डिग्री. लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला मुझे, tan डिग्री, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, tan x. तो एक तो मुझे झट से एक आंसर दिख रहा है x इज इक्वल टू 4 डिग्री, लेकिन ये गलत है. क्यों, क्योंकि आपको पता है आपका x क्या है, पाई से 3 पाई बाई 2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में. तो आपको पता है tan पाई प्लस थीटा इज tan थीटा. सिमिलरली tan पाई प्लस 4 डिग्री वुड बी इक्वल टू tan x. अब आप कह सकते हो x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो अब आप कह सकते हो कि x इज बेसिकली 180 डिग्री प्लस 4 दैट डिग्री, दैट इज 184 डिग्री. सो यहाँ से आप x की वैल्यू बता सकते हो, दैट इज 184 डिग्री. यहाँ पे बच्चे मिस कर जाएंगे और झट से आंसर गलत कर जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 40, x is pi by 19. You have to find the value of sin 23 minus x minus sin 3x upon, अगेन आप न्यूमरेटर में देख रहे होगे sin c minus sin d लगाना है, और डिनोमिनेटर में आप देख रहे होगे sin c plus sin d लगाना है. sin c minus sin d is twice of sin c minus d by 2 into cos c plus d by 2, और sin c plus sin d अभी आपने देखा है. सो लेट्स गेट, तो न्यूमरेटर को पहले देख लेते हैं. न्यूमरेटर को मैं n से डिनोट कर देता हूं, तो sin 23x minus sin 3x, this will become 2 into sin 23 minus 3 by 2x to cos 23 plus 3 by 2x. ठीक है, तो क्या बन गया, 2 into sin 10x into cos 13x, राइट. डिनोमिनेटर को देखते हैं, डिनोमिनेटर का कलर चेंज कर देते हैं. डिनोमिनेटर में क्या है, sin 16x प्लस, तो इसको कह देंगे 2 into sin 10x into cos 6x. कैसे आया बताइए, 16 plus 4 is 20, 20 by 2 is 10, and 16 minus 4 is 12, 12 by 2 is 6. So we got something like this. तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो क्या क्या कट रहा है, जल्दी से बताओ क्या क्या कट रहा है. आप देख सकते हो 2 और 2 कट जाएगा, साइन और साइन कट जाएगा. सो यू विल बी जस्ट लेफ्ट विथ cos 13x अपॉन cos 6x. अब देखो x की वैल्यू क्या दे रखी है, cos 13 पाई बाई 19, और डिनोमिनेटर में क्या है, cos 6 पाई बाई 19. गौर से देखो क्या है, गौर से देखो आपको समझ में आ जाएगा. 13 पाई बाई 19 प्लस 6 पाई बाई 19, बताओ क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पाई. मतलब ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री. क्या होते हैं दोनों एंगल, सप्लीमेंट्री. दोनों का सम 180 डिग्री है. तो बताओ cos थीटा अपॉन cos पाई माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा एज इट इज cos पाई माइनस थीटा. सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई है तो चेंज नहीं होगा, माइनस cos थीटा हो जाएगा. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -1. तो सेम फैशन में cos 13 पाई बाई 19 न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में cos 6 पाई बाई 19 है. तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं cos 13 पाई बाई 19, इसको आप ऐसे छोड़ दो, और आप इसको लिख सकते हो cos पाई माइनस 13 पाई बाई 19, और जिसको आप लिख सकते हो cos 13 पाई बाई 19 अपॉन माइनस cos 13 पाई बाई 19. इस तरीके से भी आप -1 ला सकते हो. आप इसको भी डायरेक्ट अप्लाई करके -1 ला सकते हो. सो यू कैन से द आंसर इज गोइंग टू बी -1. लेट्स गो टू द 41.
x माइनस वाई, आपको यहाँ पे कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा। आपको एक इक्वेशन दे रखा है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वन इक्वल्स पाई बाई फोर। दूसरा इक्वेशन दे रखा है cot x प्लस cot y इज इक्वल टू टू। आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है टू शो कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं tan x माइनस वाई, आपको पता है tan पाई बाई फोर क्या होता है? वन। तो आप इसको ये लिख सकते हो tan x माइनस tan y अपॉन वन प्लस tan x इंटू tan y। अब tan को अगर आप cot से रिप्लेस करोगे तो आप पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो? tan पाई बाई फोर इज बेसिकली वन, और आप इसको लिख सकते हो cot x माइनस cot y, सॉरी वन अपॉन cot x माइनस वन अपॉन cot y अपॉन वन प्लस वन बाई cot x इंटू वन बाई cot y। देखिए क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा cot y माइनस cot x अपॉन cot x इंटू cot y, न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन है। डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, cot x इंटू cot y प्लस वन बाई cot x इंटू cot y, राइट। अब देखो क्या हो गया, आपको पता है ये और ये कट जाएगा, राइट। सो यू आर जस्ट लेफ्ट विथ व्हाट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। यू आर जस्ट लेफ्ट विथ वन इक्वल्स cot y माइनस cot x अपॉन वन प्लस cot x इंटू cot y प्लस वन, राइट। दिस इज व्हाट यू गॉट, जिसको मैं वापस क्या लिख सकता हूं, cot y माइनस cot x इज इक्वल टू वन प्लस cot x cot y। अब ये एक्सप्रेशन आ गया है cot x cot y में, जिसको मैंने इसको अप्लाई करके डिफरेंट ये कॉन्सेप्ट में आ गया है। एट द सेम टाइम मुझे पता है cot y इज नथिंग बट टू माइनस cot x, cot y इज नथिंग बट टू माइनस cot x। तो अगर टू माइनस cot x, मैं cot y को क्या लिख दूं, शिट, cot y को मैं क्या लिख सकता हूं, cot y को मैं लिख सकता हूं टू माइनस cot x माइनस cot x इज इक्वल टू वन प्लस cot x इंटू cot y को मैं क्या लिख सकता हूं, टू माइनस cot x, राइट। तो ये पूरा एक्सप्रेशन किस में आ गया है, cot x में। cot x को मैं y से रिप्लेस कर देता हूं, लेट्स से cot x इज इक्वल टू y नहीं p से रिप्लेस कर देता हूं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, टू माइनस टू पी इज इक्वल टू वन प्लस p इंटू टू माइनस पी। तो देखो क्या बन गया ये, टू माइनस टू पी इज इक्वल टू वन प्लस टू पी माइनस पी स्क्वायर। इसको एक तरफ ले जाओ तो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस फोर पी प्लस वन इक्वल्स जीरो। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूं तो p क्या हो जाएगा, फोर प्लस माइनस बी स्क्वायर इज 16 माइनस फोर बाई टू, विच मेक्स इट फोर प्लस माइनस टू रूट थ्री बाई टू। 16, एक मिनट, बी स्क्वायर माइनस फोर, राइट, ओके ओके ओके, ठीक है। तो यू गॉट योर p एज, so this is your p which is basically 2 plus minus root 3, राइट। तो आपके पास क्या आ गया, cot x इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री और cot x इज इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री। अब आप सोच रहे हो ये एक्सप्रेशन आपने कहीं देखा है, आप याद करो tan 75 डिग्री की वैल्यू याद करो, क्या होती है tan 75 डिग्री की,
देखो जल्दी से कर लो, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस, जल्दी से बताओ क्या होगा, tan 45 इज 1, दिस इज 1 बाई रूट थ्री, 1 माइनस 1 बाई रूट थ्री, देखो क्या आएगा, रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन, इसको रैशनलाइज करो, क्या आया, 3 प्लस वन प्लस टू रूट थ्री अपॉन टू, 2 प्लस रूट थ्री। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ, इसको मैं हटा रहा हूं, आपको याद होना चाहिए 1575 डिग्री का। तो आप कह सकते हो कि tan 75 डिग्री is equal to cot 15 degree, which is equal to 2 plus root 3, and similarly tan 15 degree is equal to cot 75 degree is equal to 2 minus root 3। तो आप कह सकते हो x is equal to 75 डिग्री, यहां पे आप कह सकते हो x is equal to 15 डिग्री, राइट। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आई, एक आया x is equal to 75 डिग्री और दूसरा आया x is equal to 15 डिग्री। आपके पास इक्वेशन क्या दे रखा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो विच मेक्स y क्या हो जाएगा, दिस मेक्स y एज 30 डिग्री। क्या हो गया, y की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री, x की वैल्यू हो गई 75, राइट। तो x की वैल्यू हो गई 75 डिग्री, y की वैल्यू होगी 30 डिग्री। ये बहुत आराम से आपको एक पॉजिटिव आंसर आ गया इस केस से। आप अगर इसको गौर से देखोगे तो आपको पता है x माइनस वाई इज 45 डिग्री, तो यहां से y की वैल्यू आ रही है माइनस 30 डिग्री, क्या आ रही है माइनस 30 डिग्री। तो एक आंसर हो गया x इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड y इज इक्वल टू माइनस 30 डिग्री। तो ये भी आंसर सही है, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल्स की वैल्यू बतानी है। तो हम बोलेंगे आवर आंसर इज गोइंग टू बी दिस, दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव values of x and y। आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, झटपट करते हैं, आई एम श्योर आप लोग समझ में आ रहे हो क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ज्यादा मुश्किल नहीं है। cot 2 इंटू कॉट थ्री माइनस cot 3 इंटू cot 5 माइनस cot 5 इंटू cot 2। आप देख सकते हो कि 2 3 और 5 आ रहा है बहुत ज्यादा, तो सिंपली आपको पता है tan 5 इज 2 प्लस 3, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, tan 2 प्लस tan 3 अपॉन 1 माइनस tan 2 इंटू tan 3। सिंस सारी कहानी कॉट में है तो जल्दी से सबको कॉट में बदल दो, तो ये बन जाएगा 1 बाई कॉट 5, ये क्या बन गया 1 बाई कॉट 5, ये बन गया 1 बाई कॉट 2, ये बन गया 1 बाई कॉट 3, ये बन गया 1 माइनस 1 बाई कॉट 2, ये बन गया 1 बाई कॉट 3। राइट हैंड साइड पे काम कर लेते हैं, इसको 1 अपॉन कॉट 5 छोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा कॉट 3 प्लस कॉट 2, ये बन जाएगा कॉट 2 इंटू कॉट 3 माइनस 1। दोनों का डेनोमिनेटर क्या था, इस एक्सप्रेशन का डेनोमिनेटर आ जाएगा कॉट 2 इंटू कॉट 3 और डेनोमिनेटर के एक्सप्रेशन का डेनोमिनेटर आ जाएगा कॉट 2 इंटू कॉट 3। तो ये और ये आपको झटपट कट जाएगा, ये और ये। सो व्हाट यू लेफ्ट विथ इज, आप क्रॉस कर दो तो आप देख सकते हो कॉट 2 इंटू कॉट 3 माइनस 1, ये इधर चला गया और इधर आप कॉट से कर दो कॉट 5 इंटू कॉट 3 प्लस कॉट 5 इंटू कॉट 2। तो अब इस एक्सप्रेशन को देखो, इसी को रीअरेंज करते हैं, देखो क्या हो गया, 1 को मैं उधर ले जा रहा हूं तो ये बन जाएगा कॉट 2 इंटू कॉट 3, ये इधर आ जाएगा माइनस कॉट 5 इंटू कॉट 3, ये आ जाएगा माइनस कॉट 5 इंटू कॉट 2 इज इक्वल टू 1। ये एक्सप्रेशन देखे क्या है, इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, देखो यही है, इसी की वैल्यू निकालनी है। सो आंसर इज गोइंग टू बी 1, राइट। आइए झटपट देखते हैं, cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री इंटू cos 47 डिग्री। नो एंगल काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन एक चीज है कि 73 और 47 को ऐड करने से कहानी आसान सी लगती है। क्या होती है, 73 प्लस 47 इज 120 डिग्री, राइट। तो अब
क्या किया जाए क्या ना किया जाए सोचिए। मैं cos स्क्वायर 73 डिग्री को ऐसे छोड़ के इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री लिख सकता हूं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। सोचिए और बताइए मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्या फायदा होगा। इस दोनों को कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, याद करो, ये आइडेंटिटी पढ़ रखा है तुमने। क्या होता है? cos ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इफ यू रिमेंबर, याद आ रहा है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हमने किया था, इस एक्चुअली cos ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी किया था, और साइन ए प्लस बी इंटू साइन माइनस बी भी किया था, राइट? तो आपको ये याद हो गया होगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर भी दिक्कत है। और cos ए इंटू कॉस बी को, जो कि ये एक्सप्रेशन है, इसको 2 से अगर मैं 2 cos ए cos बी, आपको याद होगा क्या होता है? cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या दिमाग में चल रहा है हमारे। तो चलिए, जो आपको समझ में आ गया तो सॉल्व करते हैं खट से। तो ये बन जाएगा 1, आपको अलग कर दो, ये बन गया cos स्क्वायर 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री, इसको और इसको लिख दो हाफ इंटू 2 इंटू कॉस 73 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री। अब झटपट क्या करते हैं, झटपट इसको कर देते हैं 1 प्लस कॉस, कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ब्लैक से लिखा हुआ है राइट में, लेट्स टेक ग्रीन। सो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 73 प्लस 47 इंटू कॉस 73 माइनस 47 प्लस हाफ इंटू कॉस 73 प्लस 47 प्लस कॉस 73 माइनस 47। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को हमें राइट साइड में ले जाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस, देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री इंटू, देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया cos 26 डिग्री, ये देखो प्लस हाफ इंटू cos 120 डिग्री प्लस cos 26 डिग्री, है ना। अब हमने सारी चीजों को आसान कर लिया। नाउ cos 120 डिग्री समथिंग विच वी नो इजिली। cos 180 डिग्री आपको पता है क्या होता है? अक्खी कहां से आ गई है, तक कर दिया। ओके, सो क्या होता है ये cos 120 डिग्री, आपको पता है क्या होता है? cos 120 डिग्री इज बेसिकली cos 180 माइनस 60 विच मीन्स माइनस cos 60 विच इज माइनस हाफ। आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस माइनस हाफ इंटू cos 26 डिग्री प्लस हाफ इंटू माइनस हाफ प्लस cos 26 डिग्री। इसको आप खोल लीजिए तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस हाफ cos 26 डिग्री माइनस 1/4 प्लस हाफ cos 26 डिग्री। देखिए क्या हो गया, ये और ये कट गया तो बचा क्या, 1 माइनस 1/4, दैट मेक्स इट 3/4 योर आंसर। Okay, let's go to the 44th problem. If x is pi by 7, just hold a second. अब क्वेश्चन जब तक रीड कीजिए। x क्या है? x is pi by 7, है ना। x is pi by 7 और क्या दे रखा है, sec x प्लस 2 cos x अपॉन cos 2x, है ना। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब sec x क्या होता है, sec x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos x। तो आप इसको ये क्या करो, 1 बाई cos x प्लस 2 cos x अपॉन cos 2x। अब आप यहां देख रहे होगे कि यहाँ पे आपको चीजें देख रही होगी कि न्यूमरेटर में यहाँ पे cos x है, यहाँ पे cos 2x है और यहाँ पे cos x अलग है। एक तो आप टेम्प्ट करोगे कि बड़े आराम से इसको क्रॉस करके कुछ करते हैं,
वो एक तरीका है, लेकिन कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। अगर हम सिमेट्री से जाएंगे तो हमको ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या देखिए, अगर ये जो पहला जो आप देख रहे हो, इसमें अगर मैं 2 sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, मतलब न्यूमरेटर में 2 sin x और डिनोमिनेटर में 2 sin x, तो बताओ क्या होगा? ऊपर चला जाएगा 2 sin x और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा sin 2x। आपको पता होगा, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं न्यूमरेटर में 2 sin x मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी 2 sin x मल्टीप्लाई किया। ये क्या बन गया? cos x। यहाँ पे क्या है? 2 cos x। ये क्या है? cos 2x। इससे क्या फायदा हुआ? इस एक्सप्रेशन को आप पहचानते हो? क्या कहते हैं इसे? हम इसे sin 2x कहते हैं। सो 2 sin x अपॉन sin 2x प्लस 2 cos x अपॉन cos 2x। अब कुछ पैटर्न सा बना। अब चलते हैं क्या करते हैं, अब इसको अब एलसीएम ले सकते हैं। तो 2 sin x cos 2x प्लस 2 cos x sin 2x। देखिए अब बड़ा पैटर्न सा बन रहा है। और नीचे क्या आ रहा है? sin 2x cos 2x, राइट? देखिए क्या हो रहा है? 2 कॉमन है। अब देखिए क्या हो रहा है? sin x cos 2x प्लस sin 2x cos x। आई एम श्योर sin a प्लस भी आपको दिख रहा होगा। और नीचे है sin 2x इंटू cos 2x। ऊपर क्या आ जाएगा? sin a प्लस बी। sin a प्लस बी से क्या बना? sin 3x। और नीचे देखिए क्या हो गया? sin 2x इंटू cos 2x। अब क्या कर सकते हैं? cos 2 को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। क्यों किया बताइए? नीचे क्या आ गया? sin 4x। अब देखिए x की वैल्यू क्या दे रखी है? sin 3 पाई बाई 7 अपॉन sin 4 पाई बाई 7। अब बताइए क्या है? 4 पाई बाई 7 और 3 पाई बाई 7 क्या है? 4 पाई बाई 7 प्लस 3 पाई बाई 7 को ऐड कर दो, क्या आ रहा है? पाई आ रहा है। मतलब क्या है? ये सप्लीमेंट्री है। तो साइन थीटा अपॉन साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा? आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, तो दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आप फाइनली क्या कह सकते हो? 4 इंटू 1 इज योर आंसर। So these are easy problems, only you need to have the right practice so that इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए। देखिए क्या है? sec 8x माइनस 1 अपॉन sec 4x माइनस 1 इक्वल्स tan 8x अपॉन tan 2x। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में sec है और राइट हैंड साइड में tan है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं कहानी। और sec 8 को आप बड़े आराम से क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos 8x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन cos 4x माइनस 1, राइट? अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos 8x अपॉन cos 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 4x अपॉन cos 4x। 1 माइनस cos 8x को आप बड़े आराम से क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा क्या होता है? आप याद करो, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना? तो अगर मैं कहूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, तो वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉस होता है, तो आप ये आपको पता है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4x अपॉन कॉस 8x इंटू कॉस 4x अपॉन ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस 4x 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब देखिए मजा क्या हो रहा है। अब देखिए क्या हुआ? 2 साइन 4x अलग कर दीजिए, तो ये क्या बन गया? और साइन 4x मैंने अलग कर दिया एक, राइट? अब देखिए क्या हो गया? ये बन गया cos 8x और ये देखिए क्या बन गया? 2 साइन स्क्वायर 2x, राइट? अब देखिए क्या हो रहा है, गौर से देखिए। ये है cos 4x, ये है, सॉरी, इसको देखिए, ये क्या है? 2 साइन ए cos a क्या होता है? साइन 2a होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x क्या हो जाएगा? साइन 8x क्या हो जाएगा? साइन 8x अपॉन cos 8x। देखिए, राइट? अब यहां पे आप बच गए।
क्या है, साइन 4x अपॉन 2 sin² 2x। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये बन जाएगा tan 8x, और 2 sin 4x को आप क्या लिख सकते हो, 2 into sin 2x into cos 2x। क्यों लिख सकते हो आप, क्योंकि sin 2 थीटा इज 2 sin θ cos थीटा, तो sin 4x को आप लिख सकते हो 2 sin x cos 2x। और ये क्या हो गया, 2 into sin 2x into sin 2x। अब देखिए क्या कट्टम कुट्टम का खेल चलेगा, खेल दीजिए, इससे इससे काटिए, इसको इससे काटिए, तो क्या बन गया, tan 8x ऊपर रह गया और नीचे क्या बन गया, tan 2x, विच इज योर राइट हैंड साइड। ओके, जल्दी से आते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। 1 + sin 2x + cos 2x का होल स्क्वायर इक्वल्स 4 cos² x इंटू 1 + sin 2x। ओके, यहाँ पे देखिए 1 + sin 2x है, यहाँ पे 1 + sin 2x बाहर हो गया मिस्टीरियसली। तो अगर मैं इसको एक कंपोनेंट देखूं, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे खेलूं, तो इसको मैं एक कंपोनेंट देखूं a और इसको देखूं b, तो क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² + 2ab। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + sin 2x का होल स्क्वायर प्लस cos² 2x प्लस 2 cos 2x इंटू 1 + sin 2x, है ना। मैंने क्या किया, मैंने a + b का होल स्क्वायर कर दिया। 1 + sin 2x को मैं छेड़ता नहीं हूं, और यहां इसका होल स्क्वायर एज इट इज छोड़ता हूं, और इसको मैं क्या करता हूं, इसका मैं cos 2x कॉमन ले लेता हूं। ले लिया तो क्या बन गया, cos 2x प्लस 2 cos 2x प्लस cos 2x इंटू 2 + 2 sin 2x। एक मिनट, थोड़ा सा फिर से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, इसको लिखते हैं 1 + sin 2x का होल स्क्वायर प्लस cos 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 × cos 2x इंटू 1 + sin 2x। राइट, दिस इज द होल स्टोरी वी गॉट। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 + sin 2x को मैं अकेला छोड़ देता हूं, और यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं cos 2x कॉमन ले लेता हूं। तो मेरे पास क्या आया, cos 2x प्लस 2 + 2 sin 2x। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, 1 + sin 2x का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज छोड़ दिया, इसको cos 2x ऐसे ही रहने दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 sin²x। ओके, और इसे लिख दिया। ओके, इट इज नॉट मेकिंग सेंस, सो लेट्स गो इन अ ट्रेडिशनल वे ओनली। इट विल आ जाएगा, लेकिन काफी कैलकुलेशन हो जाएगा। सो लेट्स गो बाय अ ट्रेडिशनल मेथड ओनली। ओके, इसको स्क्वायर कर दो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये बन जाएगा sin² 2x, ये बन जाएगा cos² 2x, ये बन जाएगा 2 sin 2x, ये बन जाएगा 2 sin 2x cos 2x, और ये बन जाएगा 2 cos 2x। मैंने क्या किया, मैंने a + b + c का होल स्क्वायर कर दिया। ये क्या हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 1, तो ये बन गया 2। 2 + 2 sin 2x प्लस 2 sin 2x इंटू cos 2x प्लस 2 cos 2x। ओके, अब क्या करें, 2 कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया। 1 + sin 2x प्लस sin 2x प्लस cos 2x, सॉरी 2 कॉमन हो गया। 2 1 + sin 2x, यहाँ पे आ गया sin 2x इंटू cos 2x
प्लस कॉस 2x। ठीक है, अब देखो हो जाएगा। अब देखो 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x को एक साथ कर दो, दिस एंड दिस, और यहाँ पे साइन 2x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आया 1 प्लस कॉस 2x। तो अब देख लो क्या हो गया, 2 बाहर रहने दो, यहाँ से 1 प्लस कॉस 2x कॉमन निकल के आ गया, और यहाँ पे रह गया 1 प्लस साइन 2x। अब ये सॉल्व हो चुका है ना, बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x इंटू 1 प्लस साइन 2x। अब तो आपको गेस करने में भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x होता है। क्या हो गया 1 प्लस साइन 2x, तो क्या हो गया 4 कॉस स्क्वायर x इंटू 1 प्लस। उसमें भी जो हम लोग फर्स्ट टाइम भी कर रहे थे उसमें भी आप खोलते तो आ जाता है, इट वाज जस्ट लाइक टू मच हॉच पॉच हो रहा था। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड। जल्दी से करते हैं, 3 प्रॉब्लम्स हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। मुश्किल से 5, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होगा, लंबा होगा, तो डोंट वरी, जल्दी से 10-15 मिनट में सारा खत्म कर देंगे। 3 माइनस 4 कॉस 2x प्लस कॉस 4x अपॉन 3 प्लस 4 कॉस 2x प्लस कॉस 4x। सिंस न्यूमरेटर पहले देख लो, 3 माइनस 4 कॉस 2x, कॉस 4x को मैं लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1, है ना, सेम एक्सप्रेशन में मैंने ले आया। और cos 2x को मैं मान लेता हूं y, थोड़ी देर के लिए, इतना बार मैं cos नहीं लिखना चाहता हूं। तो 3 माइनस 4y प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1, तो क्या बन गया 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2, क्या बन गया 2 कॉमन, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, विच इज 2 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। y क्या है, y है cos 2x, राइट। डिनोमिनेटर पे देखते हैं, डिनोमिनेटर क्या है 3 प्लस 4 कॉस 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1, सेम स्टोरी, y मान लेते हैं 3 प्लस 4y प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1, 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2, 2 कॉमन ले लो, क्या बन गया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आया, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या आ गया है 2 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो क्या हो गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर। व्हाट इज 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्या हो गया राइट 47। जल्दी से पानी पी लेता हूं मैं। अब तब तक 48 प्रॉब्लम देखिए, इफ x से देखिए पढ़िए। अगेन इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम, झटपट बन जाएगा। साइन 2x प्लस साइन 4x माइनस साइन 6x अपॉन साइन x इंटू साइन 3x इंटू साइन 5x। न्यूमरेटर पे पहले काम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं साइन 2x प्लस साइन 4x माइनस साइन 6x। तो जो माइनस वाला इसको छोड़िए, इस पे काम कर लीजिए। साइन c प्लस डी क्या होता है 2 इंटू साइन 3x, क्योंकि 4x प्लस 2x इज 6x बाई 2 इज 3x इंटू कॉस 4x माइनस 2x इज 2x बाई 2 दैट इज x। साइन 6x को आप लिख सकते हो 2 इंटू साइन 3x इंटू कॉस 3x। तो आप 2 साइन 3x कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट में क्या आया cos x माइनस cos 3x। ओके, cos x माइनस cos 3x। व्हाट इज cos c माइनस cos d, जल्दी से करो। cos c माइनस cos d is 2 into you can say, आपको अगर ये पता हो cos a प्लस b याद है तो क्या होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। और बताइए cos a माइनस b क्या होता है सेम विथ प्लस, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ cos a प्लस बी, cos a में क्या होता है माइनस 2 साइन a साइन b होता है। क्या होता है माइनस 2 साइन a साइन b। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ
-2 साइन x प्लस 3x/2 इंटू साइन x माइनस 3x/2। ठीक है, देखो क्या आया, -4 इंटू साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन -x। तो फाइनली क्या हो गया, 4 इंटू साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन x। डिनोमिनेटर देखो क्या है, साइन x इंटू साइन 3x इंटू साइन 5x। देखो क्या क्या कट रहा है, जल्दी से काट दो जो जो कट रहा है। साइन 3x साइन 3x साइन x साइन x। So what is numerator upon denominator? 4 sin 2x अपॉन साइन 5x। आई एम श्योर आपको पता चल चुका है इसका आंसर 4 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 2π/7 और साइन 5π/7 1 होगा। बताइए क्यों? क्योंकि 2π/7 प्लस 5π/7 क्या है, पाई, और साइन थीटा अपॉन साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, 1, और कॉस थीटा अपॉन कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, -1। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। तो इसको मैं एकदम स्लोली स्लोली स्टेप वाइज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और बात भी करते जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखिए क्या है क्वेश्चन है, cos A इक्वल्स cos B इंटू cos X इक्वल cos C इंटू cos Y। तो आपको जो ऊपर जो दिया हुआ है इक्वेशन, वो एक नहीं दो इक्वेशन है, जिसमें A B C और XY है। इस दो इक्वेशन में आपके पास 5 वेरिएबल है, A B C एंड XY। दूसरा इक्वेशन देखिए क्या है, साइन A इज इक्वल टू 2 साइन x/2 साइन y/2। अगेन इस बार A XY है, और जो आपको प्रूफ करना है उसमें क्या है, tan स्क्वायर A/2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर B/2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर C/2। तो जिसमें आपको प्रूफ करना है उसमें आपको XY नहीं दिख रहा होगा, राइट? अब देखो XY नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपका XY एलिमिनेट हो जाए। क्या हो जाए, XY को मुझे झट से एलिमिनेट करना होगा। तो अगर मैं पहला जो दो इक्वेशन है ये, इसको अगर देखूं तो मैं झट से लिख सकता हूं cos x इज इक्वल टू cos A/cos B। और दूसरा इक्वेशन देखो cos y को, तो मैं cos y को झट से लिख सकता हूं cos y इज इक्वल टू cos A/cos B, राइट? सिंस बहुत बार cos ये सब लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं एक वो मान लेता हूं, इसको मैं लिख देता हूं P/Q और इसको लिख देता हूं P/R। P क्या है, P है cos A, Q क्या है, cos B। ये यहां पे मैंने गलत लिखा है, ये cos A/cos C है ना, और R क्या है, R है cos C। तो cos A जहां पे लिखना है मैं P लिखूंगा, cos B जहां पे लिखना है मैं Q लिखूंगा, और R जहां पे, और cos C जहां लिखना है वहां R लिखूंगा। अभी फॉर अ टाइमिंग, बाद में हम कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि बार बार cos लिखने में मैं परेशान हो जाता हूं, आप भी हो जाते होंगे आई एम श्योर। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि cos x को मैं P/Q, cos x और cos y को मैं cos A cos B और cos A cos C के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब तो सबसे पहला चीज मुझे क्या करना होगा, एलिमिनेट x एंड y। सबसे पहला जो केस है, जो सबसे पहला स्टेप आपको दिमाग में आया होगा, वो क्या आया होगा कि भैया x एंड y को एलिमिनेट करो। तो अगर मैं यहां से देखूं, साइन A इज इक्वल टू 2 इंटू साइन x/2 इंटू साइन y/2। ये सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट मुझे दिख रहा है कि एलिमिनेट करना होगा, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं, क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर A। उससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि ये बन गया साइन स्क्वायर x/2 और ये बन गया साइन स्क्वायर y/2, और 2 बन गया 4। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, आपको पता है, दिस गाय, ये जो साइन स्क्वायर x/2 है, इसका रिलेशन cos x से बड़े आराम से लिखा जा सकता है, और ये जो साइन स्क्वायर y/2 है, इसका रिलेशन cos y से बड़े आराम से लिखा जा सकता है। बताइए कैसे लिखा जा सकता है, मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस
सॉरी, ये जो 4 है, देखिए ये क्या है, ये जो 4 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर वाई बाई टू। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस वाई। अब बताओ कॉस एक्स और कॉस वाई को मैंने क्या लिखा है, कॉस ए बाई कॉस बी, और तो मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए इक्वल्स 1 माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या है, देखो कॉस एक्स है कॉस ए बाई कॉस बी, जिसको मैं पी बाई क्यू लिख सकता हूँ 1 माइनस पी बाई क्यू। और 1 माइनस कॉस वाई क्या है, कॉस ए बाई कॉस सी, जिसको मैं लिख सकता हूँ पी बाई आर 1 माइनस पी बाई आर। पी है कॉस ए, क्यू है कॉस बी और आर है कॉस सी। देखिए ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, भूलना नहीं है इसको। अब देखिए क्या हो गया, साइन स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, ये बन गया क्यू माइनस पी बाई पी इंटू आर माइनस पी बाई आर। साइन स्क्वायर ए को आप लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये देखिए क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस पी आर प्लस पी स्क्वायर। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन पी आर, सॉरी अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्यू आर हो गया 1, 1 माइनस पी बाई आर 1 माइनस पी बाई क्यू प्लस पी स्क्वायर बाई क्यू आर। ठीक है, आपको पता है कॉस ए क्या है, कॉस ए इज बेसिकली योर पी, तो इसको मैं लिख दिया 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस पी बाई आर माइनस पी बाई क्यू प्लस पी स्क्वायर बाई क्यू आर। अब देखिए क्या हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल, सो आई एम जस्ट लेफ्ट विथ माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स माइनस पी बाई आर माइनस पी बाई क्यू प्लस पी स्क्वायर बाई क्यू आर, राइट। तो पी स्क्वायर को एक साथ मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू आर इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 1 माइनस आर प्लस 1 बाई क्यू। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, माइनस पी स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 बाई क्यू आर इज इक्वल टू माइनस पी इंटू क्यू प्लस आर बाई क्यू आर। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, माइनस पी आर क्यू आर प्लस 1 अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू माइनस पी क्यू प्लस आर अपॉन क्यू आर। अब क्या होगा, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, राइट। वी आर कंसिडरिंग दैट पी क्यू आर कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या सकते हैं, मैं ये और ये भी कैंसिल कर सकता हूं, तो आई एम लेफ्ट विथ पी इज इक्वल टू क्यू प्लस आर अपॉन क्यू आर प्लस 1। देखो मैंने क्या किया, मैंने अब P को अलग कर दिया है, क्यू आर को अलग कर दिया है, कॉस ए को अलग कर दिया है, कॉस बी कॉस सी को अलग कर दिया। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री को ला सकता हूं, तो P क्या है, कॉस ए, क्या है कॉस ए इक्वल्स, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कॉस बी प्लस कॉस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस 1। देखो क्या हो गया, P क्या था कॉस ए, Q क्या था कॉस बी, R क्या था कॉस सी, तो ये हो गया। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए बाई टू tan स्क्वायर बी बाई टू tan स्क्वायर सी बाई टू, है ना। तो मुझे कॉस ए को tan स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं बताओ, आपको पता है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, या आप इसको ऐसे लिखो, आप सबको इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। आपको पता है, आपको ये आइडेंटिटी आपको पता होगी, cos 2 थीटा क्या होती है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इफ यू रिमेम्बर। ये आपको याद है, अगर नहीं याद है तो फिर आपको पता है कि क्या गड़बड़ कर रहे हो। तो cos a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर
ए बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू कॉस बी प्लस कॉस सी अपॉन, अभी इसको p प्लस क्यू के फॉर्म में लिखना है, इस पे अभी हम काम करेंगे, डोंट वरी, बार बार इतना कॉस लिखने से अच्छा है, q प्लस आर अपॉन क्यू आर प्लस 1। अब देखो क्या है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में tan स्क्वायर ए बाई टू चाहिए, और ये बहुत ही परफेक्ट केस है कंपोनेंडो डिविडेंडो का। अगर मैं ये कर दूं डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर कर दूं, दैट इज सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो देखो क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई टू, नीचे क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई टू प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई टू, अगेन सी एंड डी ऊपर लगाओगे तो क्या हो जाएगा क्यू प्लस डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर क्या होगा क्यू आर प्लस 1 माइनस क्यू माइनस आर, और क्यू आर प्लस 1 प्लस क्यू प्लस आर, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया 2 tan स्क्वायर ए बाई टू, कैसे देखिए 1 से 1 कैंसिल, ये तो डबल हो गया, ये और ये कैंसिल अपॉन 2 हो गया बाई टू, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया tan स्क्वायर ए बाई टू, लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है tan स्क्वायर ए बाई टू, जो प्रूफ करना था वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है। अब राइट हैंड साइड देखो क्या है, राइट हैंड साइड आया है क्यू आर प्लस 1 माइनस क्यू माइनस आर अपॉन क्यू आर प्लस 1 प्लस क्यू प्लस आर। अभी सबको कॉस में ले आएंगे, लेकिन मैं जानबूझ के कॉस में नहीं ला रहा हूं क्योंकि बार बार कॉस लिखना बड़ा परेशान कर देता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्यू आर माइनस क्यू में क्यू कॉमन ले लो तो आर माइनस 1 हो गया, और माइनस 1 कॉमन ले लो तो आर माइनस 1 हो गया, इसमें क्यू इंटू आर प्लस 1 प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 ऐसे कर लो, तो क्या बन गया क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस 1 अपॉन क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। अब गौर से देखो क्या हो रहा है, अगर मैं इसको लिख दूं 1 माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस क्यू इंटू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर, ठीक है लिख सकता हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, राइट हैंड साइड में आपके पास आ चुका है 1 माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस क्यू इंटू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। देखो क्या किया मैंने, ये यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो क्या किया मैंने, q माइनस 1 को मैंने 1 माइनस क्यू लिख दिया और इसको भी 1 माइनस क्यू किया, दोनों बार निगेटिव करने से पॉजिटिव हो गया इवेंचुअली। अब देखिए q क्या था, q था 1 माइनस कॉस बी अपॉन 1 प्लस कॉस बी, r क्या था 1 माइनस कॉस सी अपॉन 1 प्लस कॉस सी, ये क्या बन गया, ये बन गया tan स्क्वायर b बाई टू, ये क्या बन गया tan स्क्वायर c बाई टू। तो हेंस क्या प्रूव हो गया, tan स्क्वायर a बाई टू इक्वल्स tan स्क्वायर b बाई टू इंटू tan स्क्वायर c बाई टू। सो इट वॉज अ लेंथी प्रॉब्लम, इट वॉज अ लॉन्ग प्रॉब्लम। तो इस जल्दी से झटपट फिर से देखते हैं क्या किया हमने, ताकि आप लोग जो थोड़ा बहुत डर गए होंगे, घबराने का नहीं है, फिर से वीडियो पॉज करो, फिर से जाओ, एक एक स्टेप को देखो, एक एक इंस्ट्रक्शन सुनो, यू विल बी एबल टू फॉलो इट। ये सवाल आई एम श्योर करना मुश्किल है एग्जामिनेशन में, लेकिन एट द सेम टाइम इस टाइप के सवाल अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में अच्छे खासे सवाल हम कर सकते हैं। देखिए क्या था, आपके पास था cos a इज इक्वल टू cos b इंटू cos x इक्वल टू cos c इंटू cos y, दूसरा इक्वेशन था sin a इज 2 sin x बाई 2 sin y बाई 2, और तीसरा था tan स्क्वायर a बाई 2 इक्वल्स tan स्क्वायर b बाई 2 इंटू tan स्क्वायर c बाई 2। ये आपको प्रूफ करना था। प्रूफ जो करना था उसे साफ क्लियर हो रहा था कि मुझे सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा एक्स वाई। तो मैंने फर्स्ट टू इक्वेशन से cos x और cos y सेपरेट किया, cos x को लिख दिया cos a बाई cos b और cos y को लिख दिया cos a बाई cos c। सिंस बार बार cos लिखने में 4 लेटर्स यूज करने से अच्छा है कि एक ही लेटर यूज करें, तो cos a को मैंने p से रिप्लेस कर दिया, cos b को q से और cos c को r से। तो सबसे पहला हमने क्या करना था, एलिमिनेट करना था एक्स वाई को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, sin a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ sin x बाई 2 sin y बाई 2, तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या बन गया sin स्क्वायर a, और क्या बन गया 2 sin x बाई 2 बन गया 2 sin x बाई 2 इंटू sin y बाई 2, तो 2 दोनों के साथ चला गया, और sin स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर y बाई 2। 2 sin स्क्वायर x बाई 2 क्या होता है,
इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स, और 2 साइन स्क्वायर वाई बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस वाई। अब कॉस एक्स हमने ऑलरेडी निकाल रखा था पी बाई क्यू, और कॉस वाई हमने ऑलरेडी निकाला था पी बाई आर, तो इसको मैंने 1 माइनस पी बाई क्यू और 1 माइनस पी बाई आर लिख दिया। ठीक है, 1 माइनस पी बाई क्यू और 1 माइनस पी बाई आर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए क्या हुआ, क्यू माइनस पी अपॉन क्यू हो गया, और ये हो गया आर माइनस पी अपॉन आर। साइन स्क्वायर ए को मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको क्या किया, क्यू आर डिनोमिनेटर ले लिया, ऊपर न्यूमरेटर में क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस पी आर प्लस पी आर आया। अब फिर इसके बाद क्या किया, मैंने इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया, तो क्यू आर और क्यू आर कैंसिल होकर 1 बन गया, इसमें क्यू कैंसिल होकर माइनस पी बाई आर हो गया, फिर माइनस पी बाई क्यू हो गया, और पी स्क्वायर बाई क्यू आर हो गया। 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा माइनस पी स्क्वायर। ये नॉर्मल अलजेब्रा है, आई एम श्योर ये फॉलो आप कर रहे होंगे। माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी बाई आर माइनस पी बाई क्यू प्लस पी स्क्वायर बाई क्यू आर। इसमें मैंने पी स्क्वायर को एक साथ कर दिया और माइनस पी को एक साथ कर दिया। उसमें हमने देखा कि ओके क्यू आर और क्यू आर कट गया, यहाँ पे हम पी क्यू आर तीनों को नॉन जीरो मान रहे हैं, तो नॉन जीरो को आप काट सकते हैं, सिर्फ जीरो ही पॉसिबिलिटी होती है जिसको आप नहीं काट सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पी का पावर कट गया, आपके पास आया p इज इक्वल टू क्यू प्लस आर। यहां से खेल नॉर्मल हो चुका है। कॉस ए इज इक्वल टू, ये कहानी आपके पास आ चुकी है। कॉस ए को आप आराम से इस फॉर्म में लिखना जानते हो, और इसको आपको tan स्क्वायर ए में सिंपली कंपोनेंडो और डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट लगाया, वही चीज आपने यहाँ पे लगाया। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ गया tan स्क्वायर ए बाई टू, राइट हैंड साइड में आपने कंपोनेंडो लगा के ये आया, जिसको आपने फैक्टराइज कर दिया तो इस फॉर्म में आ गया 1 माइनस क्यू बाई 1 प्लस क्यू इंटू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। और जैसे आपने ये किया, इसको आपने लिख दिया 1 माइनस कॉस बी इंटू 1, और इसको आपने लिख दिया 1, और आपको पता है ये tan स्क्वायर बी बाई टू, हेंस यू हैव प्रूव्ड इट। ओके, सो दिस इज वाज द एपिसोड 3। अभी और भी प्रॉब्लम्स आएंगे, अब आपकी फ्रीक्वेंसी रेगुलर क्लासेस की भी और इसकी भी ज्यादा होगी, क्योंकि मैं वेट कर रहा था आपके ब्लॉक 1 के टेस्ट, प्रयास टेस्ट पहले का हो जाने का। आई एम श्योर आपने आज टेस्ट दिया था और कल टेस्ट दिया था, और आपने अच्छे से इसको हैंडल किया होगा। तो अगर किसी का पेपर खराब हो गया तो घबराने की बात नहीं है, आपने पहली बार ऐसा टेस्ट दिया जिसमें तीनों सब्जेक्ट एक साथ देख रहे थे, और क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ी सी बढ़ाई गई थी इस बार। तो घबराना नहीं है, परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है, अच्छे से परफॉर्म करना है, पेपर की एनालिसिस ये सब होगी। जिसको भी लग रहा है, जो भी डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, प्लीज फील फ्री टू कॉल मी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।